ये समृद्धि चिन्ह हमारे सादर सम्मान और गहन कृतज्ञता का प्रतीक है, जो आपके अमूल्य योगदान, प्रेरणा और साथ के लिए दिया जाता है। Besides the never-ending erosion of the land over the years, Mahurumara Island has seen several furies of nature. It is the future knocking on all our doors. The island may sink. Program, the students from any stream, humanities, social sciences, compulsory for all the students. And some of the courses, I do remember, third course is understanding the world through data lens. He is on deputation as a director in CAC. तो साथ में आपको खुशी होगी कि हमारे चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस श्री ताशी रवस्तन जी is also the alumnus of the University of Jammu. At the very outset, I wish to compliment the University of Jammu and the Consortium for the Educational Communication for organizing for this remarkable festival. So start from your introduction and what's the motive of this such festivals? So I'm Damodar Prasad. I'm the director of the Educational Multimedia Research Center, which is situated in Calicut University in Kerala, one of the 21 EMRCs of CEC under UEC and CEC. So we have been organizing Pragriti Festival for last several years, more than 25 years. And the festival is focused on four major aspects. One is human rights, second development, third environment. And now recently CEC has added Swachh as also another important category. So this festival is one of the prestigious festival among the educational festivals all over South Asia. Getting entries from Southeast Asia, neighboring countries. As this time I think they have entries from Myanmar and nearby countries. And all the EMRs also participate in the documentaries. Many other individuals also, very prominent individuals also send their documentaries to festival. And for last I think 5 years before, previously this was non-competitive. 5 years before, this has made competitive. Now we have competition in all segments. I think they get around 500 entries or so, and it's very difficult to pick the best from out of it. And it's a very tedious and difficult task, because most of the films are very creatively made, also focusing on different aspects of development, human rights issues. And the best are showcased in the Pragriti Festival. And this is an opportunity for the students and also filmmakers, documentary filmmakers, to understand the medium, they understand the issue. So from an educational point of view, it gives a window to the serious issues plaguing in the country, or the positive things that have happened in the case of Swachh. On the other hand, it also gives a window to the filmmaking aspects for students in journalism, mass communication, filmmaking aspects, the use of camera, use of scripts, etc. So this is a very, very reputed, getting an award in Pragriti is considered to be a reputed, a reputed award, and it also increases reputation in the media field. So this is the in a nutshell. This is a festival that generates many excitement among filmmakers, documentary filmmakers throughout the country. इस समय प्रोफेसर परीक्षित मेरे साथ हैं सर। जिस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है सर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि क्या क्या स्क्रीनिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। देखिए, ये 17th प्रकृति डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इसका ग्रैंड फिनाले हुआ। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है, ये कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन के बैनर के तले होता है, और ये 17th एडिशन है। ये सबसे पहला 1997 में हैदराबाद में हुआ था, और वहाँ से ट्रेवल करता हुआ अहमदाबाद, जोधपुर, आज ये जम्मू कश्मीर में पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है। इसमें विदेशों से भी काफ़ी एंट्रीज आती हैं, और एक नेशनल लेवल की एमिनेंट जूरी ने सिलेक्ट की हैं 4 थीम्स पे डॉक्यूमेंट्रीज, जो कि आपकी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, स्वच्छता और एनवायरनमेंट पे है। और प्राइज़ विनिंग डॉक्यूमेंट्री को
₹50,000 का प्राइज़ मनी दिया जा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज़ यहाँ पे स्क्रीन की जाएंगी और उसके साथ 4 जो सेकंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ थी उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसमें सबसे विशेष बात ये है कि जो इनके फिल्म मेकर्स हैं वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, आज और कल रहेंगे और हर डॉक्यूमेंट्री के बाद उनकी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगी। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो कि हायर एजुकेशन के लिए एक डिजिटल वन स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूजीसी के बैनर के तहत ये काम करती है। इसका बेसिक माध्यम ये रहा है कि क्रिएटिविटी के थ्रू किस तरह से बच्चों में और ऊर्जा लाई जा सके और कैसे उनको एजुकेशन के बारे में अवगत कराया जा सके, और इसके तहत ये कंसोर्टियम का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। सर, जिस तरह से ये फेस्टिवल आयोजन किया गया है और बच्चों की बात करें, बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि कितना फ्रूटफुल जो है स्टूडेंट्स के लिए या फिर जम्मू वासियों के लिए? डेफिनेटली एक फ्रूटफुल इनिशिएटिव है सीईसी ने और जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो मिल के लिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये हमारे युवा के लिए एक सीख है और उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है डेवलपमेंट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, स्वच्छ भारत को लेके। और इसमें ये भी है कि हम डेवलपमेंट करते करते कहीं अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं, या डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं हम अपने ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को 2 दिन की जो स्क्रीनिंग हो रही है फिल्म की सीईसी द्वारा, उसमें दिखाया जाएगा। सर, आपसे भी जानना चाहता हूं कि जो यहाँ पर फिल्में प्रेजेंट की जा रही हैं, किन किन बारीकियों का विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है जूरी मेंबर्स द्वारा? जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू है कि इस प्रोग्राम को जो है जम्मू में किया गया, जैसे हैदराबाद से शुरू हुआ, जोधपुर से हुआ, और उसके बाद जो है ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि प्रोफेसर प्रशिद मनहास जो है खुद सन ऑफ सॉइल हैं और एल्यूमिनस हैं यहाँ के, और वर्किंग प्रोफेसर भी हैं, और उनको लगा कि जब ये इनका पहला इनिशिएटिव जो था उन्होंने अपने ही घर से शुरू किया। और ये एक संदेश है कि जितने भी हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा इस टाइम पे ड्रग का मेनेंस है, बाकी एंटी सोशल एलिमेंट्स कितना ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। उन सब के लिए जो है एक काम करने की ज़रूरत है, सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। कंसोर्टियम फॉर जो एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन जो है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है डिफरेंट माध्यम से। उसी की एक कड़ी जो है आज आपने यहाँ पे देखी है। सर, ये प्रोग्राम जो है 2 दिनों तक रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये 2 दिन तक रहेगा। इसमें डिफरेंट फिल्म्स जो हैं, जैसे उन्होंने बताया कि स्क्रीन होंगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम यूथ को जो है इन्वॉल्व कर सके ताकि वो इसके साथ अवगत हो सकें, और इंटरेक्शन सेशंस भी इनके साथ होंगे डायरेक्टर्स के साथ, और बच्चे उसमें सीखने को उनको मिलेगा।